is an urban slum project of Emmanuel Hospital Association, working among the poor in the slums of Delhi since November 1998. The project initially worked in a cluster of slums on the bank of River Yamuna. In March 2004, when the government demolished these slums, Sahyog project started its work in 4 other slums, namely Harijan Basti, Khajuri, Madanpur Khadar Phase 3 and Madanpur Khadar Extension Basti, which had significant needs, and it is an underserved area. The project also changed its strategy from service delivery to empowerment approach and is now working towards empowering the community in these slums. A sustainable and significantly increased quality of life is what the project hopes to see in the urban poor of Delhi. In 2006, the project team did extensive work on the promotion of Right to Information Act 2005, and the project team is working among the community-based organization and doing workshop and training program to capacitate the community-based organization. The main activities of the project team is building relationship, identifying community problems, then forming community-based organization, discussing the problems within the meeting, and capacity building of the CBO's member through various training, exposure program, and mentoring leaders and building alliance with government and non-government organizations which will benefit the communities, promoting and training community people on Right to Information Act 2005. Sahyog is established in 1998 and our project is working for last 10 years in East Delhi. Our project is currently operating in 4 areas of Delhi, namely Harijan Basti, Khajuri, Madanpur Khadar Resettlement Colony and Madanpur Khadar Extension. The main purpose of our project is to build the capacity of grassroots level people, and we find that in this community the people are very disadvantaged group and they are actually lacking basic amenities. They have different problems. There is a issue of safe drinking water, there is a problem of electricity, and there is a problem of health facilities. And for last 2.5 years Sahyog project is working in empowerment model, and we are actually building the capacity of the community group. We are forming community groups called community based organizations, CBOs. So Sahyog team is forming these CBOs, and through Right to Information and through various workshop and training we are building their capacity. सहयोग ने जो हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया है उसका मेन उद्देश्य है कि हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों के टीकाकरण, HIV एड्स, कम्युनिकेबल डिजीज़, गर्भावस्था के दौरान माताओं को न्यूट्रिशन किस प्रकार से वो लें, और साथ ही साथ जो सरकार की समाज कल्याण विभाग की स्कीम है, विधवा की हो, वृद्धावस्था की हो या लाडली योजना हो, उसके बारे में बस्ती के लोगों को जागरूक करना, जिससे कि वो अपने अधिकार को ले सकें। मैं हेल्थ वर्कर हूँ और लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देती हूँ। आज का टीकाकरण के बारे में जानकारी लोगों को देना, आज हेल्थ मेला इसीलिए कारण लगा हुआ है, और गर्भवती महिलाओं को टीका कब और क्यों लगाता है और उनके भोजन के बारे में, जो ताकत की पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानकारी देती थी। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को हम जागरूक करते हैं कि कब और किस समय टीका लगना है। और कुछ सरकार ने नियम निकाला है, जो लड़कियां को हत्या होती थी उस कारण, क्या सरकार ने 1 लाख का जीवन बीमा चालू कर रखा है, उसके बारे में जानकारी देते हैं हम लोगों को और उनके साथ ही मोटिवेट भी करते हैं। सहयोग से मैं जॉइंड हूँ और आज की जो जानकारी है इस महीने में, ये 6 तारीख में ये जानकारी दी जा रही है कि इस कॉलोनी के अंदर बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाती हैं। जैसे कि गर्भवती महिला हैं कि उनको क्या खाना है, अच्छा खाना है मतलब पौष्टिक आहार, या उसके साथ साथ और भी क्या लेना है,
जैसे आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो खा नहीं पाते। यही लापरवाही की वजह से इनकी बच्चे की भी, माँ की भी डेथ हो जाती है। ये आज इसी के लिए जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। और मलेरिया के विषय में भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी होने की वजह से मच्छर पैदा हो जाते हैं। और आँखों के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि जिनके आँखों का चेकअप है, मतलब जिनको मोतियाबिंद है, उनके विषय में भी दी जा रही है। मेरा नाम ये सफीकन है, मैं यहाँ पे टीका लगवाने आई हूँ। टीका लगाने से फायदा ही तो होता है बच्चे को। मेरा नाम चमन बानो है, हमें 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ में काफ़ी जानकारी मिलती है, गर्भवती औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, टीके के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, HIV के बारे में, ये सब कुछ जानकारी मिलती है। बहुत कुछ रहता है, हमें राहत मिलती है। और बच्चों के लिए भी बताते हैं, जैसे खाने पीने के बारे में, ये सब कुछ बताते हैं, अच्छा लगता है। हम स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं NGO सहयोग वालों का कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के अंदर जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, अपने तरीके से पहुंचाते थे कि रोड जाम कर दिया, पुलिस के डंडे खा लिए, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, ये नहीं बन पा रहा, वो नहीं बन पा रहा, किसी किस्म का कोई समाधान नहीं था। लेकिन जब से NGOs आई है, इनका सिस्टम इतना अच्छा है कि ये पैसा ना दे करके, फाइनेंस ना दे करके, ये खुद कम्युनिटी के लोगों को, जो गरीब किस्म के लोग थे, जिनके ऊपर पुलिस भी परेशान करती थी, मुकदमों में मतलब ऐसा क्यों करती थी, लेकिन जब से इन्होंने आकर के हर कॉर्नर पे, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले के अंदर, हर ब्लॉक में जा करके एक मीटिंग के रूप में लोगों को समझाना शुरू किया और अपनी सुविधाएं लेने के लिए, अपनी समस्या हल कराने के लिए तरीके बताए। हमारे लेवल के लिए ठीक है। हमारा नाम मीर मोहम्मद है, हम ऑल आसाम श्रमिक एसोसिएशन की उपसभापति है। हमारा जो कार्यक्रम होते हैं सहयोग के द्वारा से होते हैं। हमारा जितने काम होते हैं, इसलिए कई दिन हो गया 100 बच्चा के टीकाकरण की भी काम हुआ है। और जितने भी काम होते हैं, ID प्रूफ की जितना भी काम होते हैं, रेशन कार्ड की, वोटर की, और आपको बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, खर्चा टीका के लिए, मिलारी के लिए, सारे सहयोगिता हमारा साथ काम करते हैं। हम उनके साथ मिल के काम करते हैं। जब हम CBO ग्रुप बनाते हैं 10-10 करके, तो उनकी एक ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जानकारी होती है कि हमारी जानकारी में, मतलब हमें सरकारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार पे हमने पहले खुद हमने ली, हम भी नहीं जानते थे कि ये सूचना का अधिकार क्या होता है, तो हमने भी ट्रेनिंग ली। उसके माध्यम से हम बस्तियों में, मतलब खजूरी में, हम ग्रुप के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं।